A very good morning to all of you students. So today we are going to see the next chapter, which is the chapter 21, globalization. So let's start this chapter with a short introduction. In today's world, there are several alternatives of goods and the services available to a consumer. The latest models of the camera, mobile phones, and the television sets up produced up in the developed country of the world are available at a very cheap prices. Some years ago, only the Ambassador and the Fiat cars were seen on the Indian roads. But today, cars made by many companies of the world are available in India. This situation is not truly for the cars only, but the things like clothes or different countries fruits, tent food, etc are also available in the Indian market. Here this fact is the worth quoting that these varieties of the goods or services are available for last 2 decades only. Prior to this, goods manufactured within the country were only available to us. The reality is this, that today the foreign trade has linked all the countries of the world together, and there are several big companies of the world which are called multinational companies. They sell their product in the several countries of the world. This is noticeable here that the multinational company is that which produces a goods in a more than one country, and this companies produces a goods on a large scale and sell all this produce to द सेवरल कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंज्यूमर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पहले की बात करें तो क्या हो रहा है, कई सारी चीज़ें अब आप जो है बहुत चीप रेट पे आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो जो फियाट कार है ये आपको गलती से ही कहीं जो है इंडियन रोड्स पे देखने को मिलेगी, पर आज जो है हर तरह की कार्स आपको आपकी कंट्री में अवेलेबल है जो कि फॉरेन कार्स हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों का हेल्प कर रहे हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो मतलब कई तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हमारी इंडिया में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पा रही हैं क्वालिटी की, ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं चीज़ों सेवरल कंट्रीज़ में। अब मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन का, वो हम देखेंगे। ड्यू टू अ ग्रोइंग फॉरेन ट्रेड एंड द मार्केट ऑफ अ डिफरेंट कंट्री एंड द गुड्स सोल्ड in them have unified. The growing trend of a foreign trade has now brought the market of a different country close to each other. The advanced technology has played a very significant role in this closeness and has changed the whole world into a big village. This is a globalization where market of a different country work together in the form of unit. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, कई सारी कंट्री मिलके जो भी गुड्स है सोल्ड कर रही है यूनिफाइड प्रोसेस में, यानी कई सारी फॉरेन कंट्री जो एक साथ ट्रेडिंग कर रही है, ये सारी धीरे धीरे क्या हो रही है, क्लोज आ रही है एक दूसरे से। कई सारे विलेज की बात करें या कई कंट्री की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं लोगों को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं क्लोज कर रही है एक दूसरे से, वर्ल्ड को एक दूसरे से। तो ये जो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को एक जगह पे इकट्ठा होके काम करने का मौका दे रही है। Thus by a globalization is meant working for a whole world together with a cooperation and coordination in the form of market. Under the process of a globalization, the restriction on the inflow and outflow of goods and services from one country to another are withdrawn. Thereby the market price start operate freely in the whole of the world. As a result, the price in all the countries become a near about uniform. In this way, as a result of a globalization, all the market of the world are unified. अब देखिए जो ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड के हर जगह के लोग एक दूसरे से कोरिलेट करके टुगेदर जो है ये कोऑर्डिनेशन में मार्केट में वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कई तरह के इनफ्लो आउटफ्लो भी है, जिसमें सर्विसेज जो है पूरी कंट्री में विड्रॉन की जा रही है, हटाई भी जाती है, लाई भी जाती है। इसके साथ साथ मार्केट स्टार्ट जो है ऑपरेट कर सकता है फ्रीली पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी अगर कोई भी बिज़नेस करना है तो कंट्री को कहीं ना कहीं ये जो है इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड हो रहा है। अब चलिए देखते हैं फैक्टर्स जो इंस्पायर कर रही है ग्लोबलाइजेशन में। एक्सपांशन ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स द टेक्निकल नॉलेज हैज़ डेवलप्ड। अब देखिए बेसिकली अगर 50 ईयर्स के पहले की आप बात करें तो फैक्टर्स क्या इंस्पायर कर रहे हैं। पहले 50 साल पहले जिस तरह का हमारी कंट्री में जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी, क्या हो रही थी, काफ़ी पुरानी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो रहा है, कई दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कंट्री में आ रही है, तो कई तरह से हमारा काम जो है वो ईज़ी होता जा रहा है। इसके साथ साथ और भी क्या है, लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो पा रहे हैं, काम और दिन पे दिन बढ़ पा रहा है और नई नई चीज़ें हम कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए जैसे सैटेलाइट है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें हेल्प कर रही हैं और भी ज़्यादा अच्छी ग्लोबलाइजेशन के में
दूसरा है प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। अब देखिए अगर मिडिल 20th सेंचुरी की हम बात करें तो उस टाइम पे कई सारी बाउंड्रीज थी कंट्री में, यानी कंट्री जो है अपने ही रिस्ट्रिक्शंस लगा के जो काम करना है, जिस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, जिस तरह का भी बिज़नेस करना है तो वो वहीं पे हो पा रहा है, उतने एरिया में ही हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन अगर हो रहा है तो कई कंट्रीज़ क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर बिज़नेस कर पा रही है, लोगों को एक दूसरे को मौका मिल रहा है। अगर इंडियन सोसाइटी तो इंडियन सोसाइटी में आपको कई तरह की दूसरे कल्चर की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, दूसरे आइटम जो है वो आपको अब बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मशीनरीज़ है, फर्टिलाइज़र्स है, पेट्रोलियम है। तो कई सारी चीज़ों को क्या मिल रहा है, परमिट मिल रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फैक्टर है जो कि इंस्पायर कर रहा है किससे, ग्लोबलाइजेशन को। अगर हम बात करें एक्सपांशन ऑफ कंपटीशन एंड मार्केट, अब देखिए क्या हो रहा है, अब अगर मार्केट में ऐसा कंपटीशन है, अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे कई सारी सेवरल कंपनीज़ जो हैं, फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, किसी एक चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो क्यों, उसका क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये कंपटीशन की वजह से दूसरी कंपनीज़ भी जो है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मेनटेन करके रख रही हैं, उसे प्रॉपरली दे रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। दूसरा एक्सपांशन ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लिंक हो रही है एक दूसरी डिस्टेंट कंट्री से, और इस तरह से क्या है नए कंट्रीज़ में जो है कई सारी नई कंपनीज़ खुल रही हैं, लोगों को नया से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, चीज़ें लोगों के लिए थोड़ी चीपर होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं किस चीज़ के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब देखिए बात की जा रही है यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जनरली द फॉरेन ट्रेड ऑफ ऑल द कंट्रीज has increased. The international institutions like World Bank and the International Monetary Fund have also contributed significantly in the expansion of a trade. अब देखिए अब एक्सपांशन ऑफ जो फॉरेन ट्रेड की बात करें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कई सारी कंट्रीज़ में जो है इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है, तो ये जो मॉनेटरी फंड है, जितना भी कंट्रीब्यूट किया गया था, ये सारे एक्सपांशन ट्रेड जो है ये क्या हो गया, बढ़ता चला गया। यानी कई तरह की गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट है, इन सारी चीज़ों में एक्सपांशन होना शुरू हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। इन दी अदर हैंड क्या हुआ, कई कई लोगों को इसमें बेनिफिट भी हुआ, कई सारे लेबर्स जो हैं उन्हें काम मिल सका। तो ये चीज़ें अच्छी हुई। इसके साथ साथ ये रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर हैव गॉट द गुड अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिशन। अब इसके साथ साथ देखिए, जो अगर कोई प्रोडक्ट कहीं फॉरेन से आ रहा है, फॉरेन ट्रेड से आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी कई सारी कंपनीज जो है वो दूसरी कंट्री में भी खुल रही हैं। तो लोगों को क्या हो रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन भी जो है धीरे धीरे थोड़ा कम पड़ेगा। इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का लोग अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है कंपटीशन में आने की। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द 1995, द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ increased rapidly. All the countries have adopted the policy related to the free trade in the place of policy of a protection. सो द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ गेंड अ स्पीड। अब देखिए जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया 1995 में, तो इसने कई तरह की जो है ये इंक्रीज़ करने लगा किस चीज़ को, ट्रेडिंग को, क्योंकि इसने कई सारी पॉलिसीज़ लाया जो कि पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी एज अ प्लेस ऑफ पॉलिसी प्रोटेक्शन की। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन में, तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है वो गेन की थी। इसके साथ बाद अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991। अब चलिए देखते हैं हम आगे। Self-reliance. The 5-year plans aim to achieve a self-reliance. The dependence upon the foreign was reduced to fulfillment of the same. अब देखिए सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, बेसिकली जिन जिन प्रोडक्ट के लिए हमें फ़ॉरेन से कुछ चीज़ें मंगानी पड़ रही है, इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, तो यहाँ तक कोशिश की जाए कि वो सारी चीज़ हमारी ही कंट्री में हम डेवलप कर सकें, बना सकें, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके कई फ़ायदे हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा और हमारा ही प्रोडक्ट हमारी कंट्री में हमें मिल जाएगा। तो जो पैसे, जो इकोनॉमी हम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं वो हमें खुद मिलने लगेगी। नाउ वी सी द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है देखिए, उसमें जो भी मशीनरीज, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम और सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम फ़ॉरेन से ही ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का कंपटीशन जो है, प्रोडक्शन ये अडॉप्ट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे 1991 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से उन पर ही क्या थे, डिपेंड थे। और उस समय के टाइम पे जो है हम कुछ 0.6% जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया का ये वर्ल्ड ट्रेड में चल रहा था इन 1991। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखिए नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम का मतलब यही है कि एक पर्सन की टोटल मिनिमम एवरेज जो इनकम है वो कितनी है। तो देखिए उस टाइम पे जो थी ये इनकम ये इंक्रीज़ होकर 4.40% से
बढ़ गई थी फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ इन पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही थी, इस वजह से क्या है, इनकम पर कैपिटा जो है इंक्रीज हो गई और वह बहुत ही धीरे से स्पीड्स में. Increase in the opportunity of employment. During the period, though the efforts made to increase the job opportunity, even the problem increased day by day. The problem of unemployment become very complicated till 1991. अब देखिए, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती चली जा रही थी, अपॉर्चुनिटी उतनी ही कम होती चली जा रही थी एम्प्लॉयमेंट की. तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है. Crisis of a foreign currency. India adopted the policy of the reducing import between the years 1951 to 1991, but India needed a foreign currency for the import of a petroleum product. अब देखिए, क्राइसिस ये हो रही थी फॉरेन करेंसी की कि कहीं ना कहीं देखिए जो हमारी करेंसी की इकोनॉमिक वैल्यू है वो दूसरी करेंसी से जो है वो कम है. तो क्या होता है, कई बार जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बाकी के प्रोडक्ट वहाँ से मंगवाने पड़ रहे थे, तो उसके बदले जो यहाँ से इकोनॉमी जा रही थी कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जा रही थी, ज़्यादा परसेंटेज में जा रही थी. तो इस चीज़ का इन्फ्लेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही थी. प्राइस राइज. अब देखिए, अगर कोई चीज़ मतलब हम कहीं किसी कंट्री से ख़रीद रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ की नीड हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है, तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, उसका वेट जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है. तो प्राइस राइज ये जो था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है रेट जो है हर चीज़ के बढ़ते ही जा रहे थे. तो 1951 से 1991 का जो टाइम था ये प्रोग्रेस तो कर रहा था कई सारी एरिया में इकनॉमी के, बट कहीं ना कहीं जो है सही कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हम इस टाइम पे फेस भी करते जा रहे थे. यानी गोल्ड रिजर्व्स और बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ईयर 1991. अब 1991 के बाद हमारी कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो हम देखेंगे. India has adopted the new economic policy since 1991. The main objective of this policy is to take the advantage of the progress of the world and the technical knowledge and thus accelerate the economic development of the country. अब देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है इंडिया जो है कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 के बाद अडाप्ट करना शुरू कर रही थी. अब इसमें क्या है, जब भी हम न्यू पॉलिसी कुछ लेके आते हैं तो ज़रूर ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उसके बाद नई पॉलिसी आती है. और जब नई पॉलिसी लाई जाती है तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो पुरानी जो ख़राब चीज़ें चल रही हैं उसको हम कवर करते हुए निकलते हैं. तो ये जब नई पॉलिसी आई तो कई तरह के डेवलपमेंट हमें कंट्री में देखने को मिले इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, प्लस कई सारी लिबरलाइजेशंस भी मिली, कई तरह की और चीज़ें मिली जो प्राइवेट और इन्वेस्टमेंट को और दूसरी फॉरेन कंपनियों को हमारी कैपिटल में अट्रैक्ट कर सकें. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें आगे अब पढ़ने को मिलेंगी. जैसे देखिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. In import policy declared in 1991, emphasis has been laid on export-based development. To obtain this objective, the restrictions on the import and export and administrative control have been reduced. In the import and export policy 2004 to 9, import and export have been made more convenient. Here, this is to be noticed that the India is a member of the World Trade Organization from the very beginning. Therefore, it is bound by the commitment to open the Indian market for the other countries of the world and increase the free trade. During the last 5 years, last few years, the reduction in the import duty has affected the Indian economy favorably. The contribution of Indian foreign trade and the total world trade in the year 1990 has increased from 0.6% and become near about 1% of a ना. अब देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ है, जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, ये कम हो जाने की वजह से क्या है और नई पॉलिसी आने की वजह से क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया, कई सारी चीज़ों से फ्री किया ताकि क्या हो सके, फ्री ट्रेड मिल सके सारी कंट्री को, सारी जगहों पे मार्केट में बेसिकली सारी कंट्री को आने का मौका मिल सके. तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था. इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें जो वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हुआ जो इस ट्रेडिंग से, तो क्या है, करीबन अराउंड 0.6% जो है ये इंक्रीज़ हुआ और नियर अबाउट 1% जो है ये अभी इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन. The industrialization in the country has been accelerated due to the industrial policy declared in the year 1991 and reforms made afterwards. Now the number of the industries reserved exclusively for a public sector is reduced only to 3.
It means that the private sector has got sufficient opportunity for expansion. According to the industrial policy, now the policy of liberalization and privatization is being adopting in the country. Now several areas of the economy are open for a foreign investment. As a result of this new industrial policy, the growth rate in the country has raised to more than a 9%. अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, कहीं ना कहीं जो है ये जो फेवर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आने से ही, मतलब नई नई तरह की पॉलिसी डिक्लेयर होने से कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, कई नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है पब्लिक सेक्टर के लिए जो है रिड्यूस होके और नई नई चीज़ें आने लगी। इससे बेसिकली क्या है कि कई सारे प्राइवेट सेक्टर को जो है एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी जो मिलनी थी एक्सपांशन की, वो उन्हें मिल पाई। कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसमें कई सारे लिबरलाइजेशन थे, प्राइवेटाइजेशन थे, जो कई दूसरी कंट्रियों से अडाप्ट किए गए थे। इसके बाद ये जो इकोनॉमी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्हें मौका मिला कि वो आए और इंडिया में इस सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकें। एज अ रिज़ल्ट जो थी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ग्रोथ रेट जो है हमारी कंट्री का बढ़ा के 9% कर चुकी थी। Increase in the foreign investment. After the globalization, the multinational companies have increased their investment in India. These companies have shown their interest in such investment as cell phones, motor cars, electronic equipments, cold drinks, junk food materials and the banking services. अब देखिए जो फॉरेन सर्विसेज की बात की गई है इन्वेस्टमेंट की, तो ग्लोबलाइजेशन जो है कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया कई सारे सेक्टर में। अगर हम सेल फ़ोन की बात करें, मोटर कार की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या जंक फूड, बैंकिंग सेक्टर्स, हर जगह क्या है बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो उनकी इन्वेस्टमेंट से हो क्या रहा था, कई तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और नई सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ती जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या थी, हेल्पफुल थी। और इकोनॉमिकल ग्रोथ की अगर बात करें हम कंट्री की, तो ये भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड था। Advantage to the consumers. After the globalization, the competition between the foreign and the local producer has increased. अब देखिए कंज्यूमर के लिए क्या है, अब जो ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन था ये फॉरेन और लोकल प्रोड्यूसर के बीच ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब मान लीजिए पहले क्या होता था, अगर अभी भी आप ये चीज़ देख सकते हो, अगर कोई चीज़ हमारे पास लोकली बन रही है, बिक रही है, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी या मिलती जुलती इस हिसाब से होगी। लेकिन ऐसे ही में अगर किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री की कोई प्रोडक्ट आ जाए और वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की हो, तो आप क्या करेंगे, आप वही बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप ये खरीदना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं किसका नुकसान होने लगेगा, जिस लोकल पर्सन ने उस दूसरे प्रोडक्ट को बनाया हुआ था और जो हम पहले खरीद रहे थे, अब उसका नुकसान होना शुरू होगा, यानी उसकी परचेसिंग नहीं होगी ज़्यादा, उसका सेल्स नहीं होगा। तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को समझेगा और अपने कॉम्पिटिशन में उतरने के लिए अब वो और भी अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ी और ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एडवांटेज टू इंडियन कंपनीज। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन द सेटिंग अप ऑफ सेवरल इंडियन कंपनीज एज मल्टीनेशनल कंपनी एंड दिस कंपनी हैव एक्सपांडेड देयर एक्टिविटी एट वर्ल्ड लेवल। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सनडम, Fasters can be taken as an example, which have now become a multinational company and Indian company. In order to compete with the foreign companies, have adopted the latest technology and have raised the standard of their production. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या पहले क्या होता है, कई सारी इंडियन कंपनीज थी वो जो खुद ही सारा काम कर रही हैं, सारी चीज़ें देख रही हैं, कर रही हैं। पर जैसे जैसे 91 के बाद न्यू वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसीज़ आई, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके साथ साथ क्या है दूसरी कंट्रीज़ भी आके इंडिया में ज्वाइंट होने लगी और सारी क्या बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। अब इस तरह से क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि क्या है, अगर हम दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर वहीं की कोई कंट्री या कोई वहाँ का बिजनेसमैन हमारी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करता है तो वहाँ बिज़नेस फैलाना क्या है हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज था किन के लिए, इंडियन कंपनीज़ के लिए। एक्सपांशन ऑफ सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के एक बार क्या एडवांटेजेस थे वो हम देखेंगे एक्सपांशन में। Globalization has expanded a new advantage service in the field of the communication technology, publication of magazine for a company at London by Indian company and call center and are its examples. Apart from these services like accounting, administrative work, engineering, etc. are available in the country like India. These services are exported to developed countries. India is earning more foreign currency from export
ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब देखिए एक्सपांशन जो है कई सारे सर्विस सेक्टर्स में हुआ है, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन की बात करें, तो कई सारी चीज़ें जो है नई नई हमारी कंट्री में आई और कई सारा उसका एक्सपांशन हुआ। तो उसमें कई तरह से काम होने शुरू हुए, कई सारे जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो हमने एक्सपोर्ट करने शुरू किए। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है, फॉरेन करेंसी को अर्न करना शुरू किया। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होना शुरू हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। This is not true to say that India has only benefited by globalization. The reality is this: the globalization has also created a several problems. Following are the problems. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ हमें बेनिफिट ही दिया है, यही कहना सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें और भी सारी प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो क्या है प्रॉब्लम्स, हम चलिए देखते हैं आगे। Impact on the small producers. Globalization has adversely affected several small industries of India. Small industries are not able to compete with a good produced in a foreign countries. As a result, several small industries have closed. The condition of industries like a battery, plastic toys, tires, dairy products, and the edible oil is very poor. Here, this is a noticeable that in India, maximum people get employment in small scale industries next to एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इम्पैक्ट पड़ा क्या स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे। अब देखिए जो भी ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट जो है दूसरी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आ रहे थे, वो क्या है स्मॉल इंडस्ट्री से कम्पीट होना शुरू हो रहे थे। उसके कंपटीशन में आके और भी अच्छी प्रोडक्ट जो है उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो इस पर क्या हुई, कई सारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो क्लोज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि हमने उनकी प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। जो भी कंडीशन आई, जैसे इंडस्ट्रीज़ थी किसी बैटरी की, प्लास्टिक टॉयज़ की, डेयरी प्रोडक्ट की, एडिबल ऑयल की, तो ये सारे क्या आ गए, वह बहुत ही गरीब होते चले गए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनका एम्प्लॉयमेंट जो है इन स्किल इंडस्ट्री से जो चल रहा था वो बंद हो गया, और लोग क्या है अनएम्प्लॉयड थोड़े ज़्यादा होने लगे, और फिर इस वजह से क्या है वो फिर एग्रीकल्चर की तरफ मूव करने लगे। तो ये जो एक इम्पैक्ट था ये काफ़ी ज़्यादा था, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, चलिए देखते हैं हम आगे। लाइव्स ऑफ द लेबर हैव बीन ग्रेटली अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन दीज डेज ड्यू टू द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। मैक्सिमम एम्प्लॉयज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट to the laborers. It means that the jobs of laborers are not secure. The factory owner, to minimize the cost, provide the temporary employment to the laborer so that they may not have to pay them a salary around the year. Along with this, the laborer have to work for a long working hours. Thus, it can be said that the proper share from the benefit gained by globalization is not occurring to the labor. अब देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुई, कहीं ना कहीं अब जो जॉब मिल रही थी, जो कंपटीशन जिस हिसाब से ग्रो हो रहा था, तो एम्प्लॉयज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी। एम्प्लॉयमेंट जो लेबर को दी जा रही थी, यानी पहले जो काम उनको मिल गया वो करते चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिक्योर नहीं रह गई थी, बहुत ही अनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्री उन्होंने क्या किया, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट को रखना शुरू किया। तो अब टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट को रखने में क्या है, उन्हें पूरे साल की जो है सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, काम हो चाहे ना हो, वर्किंग आवर्स उनके बढ़ा दिए गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बेनिफिट गेन कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन से, ये पूरी चीज़ें जो हैं लेबर्स तक प्रॉपरली नहीं मिल पा रही थी। अब चलिए हम देखते हैं आगे। बेनिफिट नॉट टू ऑल। The experience tells us that globalization has not been beneficial to all people. The new opportunity gained by the globalization have been best utilized by educated and efficient and the prosperous people. The incident of the Nandigram shows that the people whose land was taken over and they did not get a sufficient benefit of a special economic program. Thus, it can be said that the weaker and a poor section of the society is far away from the advantage of the ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए जो भी हम अगर एक बात करें, जो भी एक्सपीरियंस से जो हुआ, तो देखिए जो भी मेन जो भी बेनिफिट था, जो भी अच्छा प्रॉफिट हम कमा पा रहे थे या मिल रहा था, वो सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं सोसाइटी ने गेन की जो कि एजुकेटेड थी, एफिशिएंट थी और प्रॉस्परस थी। बाकी जो लोग थे, जो नॉर्मल पीपल थे, वो इन सारी चीज़ों को क्या किया, सफिशिएंट अमाउंट में उनका बेनिफिट जो है वो सारी चीज़ें नहीं ले पाए। तो जो पुअर सेक्शन था वो वीकर ही होता चला गया, और सारा एडवांटेज जो है कहीं ना कहीं किसी और को मिलता चला गया। तो ये चीज़ कंफर्म है कि कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट हो रहा था या मिल रहा था, ये सभी को नहीं मिल रहा था।
इन्फ्लुएंस ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। अब जो डेवलप्ड कंट्री है उन क्या इन्फ्लुएंस हो रहा था चलिए देखेंगे इसमें आगे। The process of a globalization is being implemented accordingly to the direction of the World Trade Organization. But in this organization, the developed country have a strong hold. अब देखिए जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे बताई गई है ये इम्प्लीमेंट की गई थी हर डायरेक्शन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बट ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रांगली डेवलप होके होल्ड हो पाई। These countries support only those policies and programs which are beneficial for them. और इन कंट्रीज़ ने उन्हीं प्रोग्राम्स और बाकी चीज़ों को सपोर्ट किया जो कि उनके लिए बेनिफिशियल्स थे। दिस कंट्री हैव नॉट ओपन देयर मार्केट फॉर लेबर्स। और इन कंट्रीज़ ने ये मार्केट जो है लेबर्स के लिए ओपन नहीं किया। इन द सेम वे द सब्सिडी गिवन टू द एग्रीकल्चर इज़ नॉट येट डिसाइडेड। Therefore, it is necessary to restrict the influence of this country, and such type of globalization should be developed, which may be beneficial for all countries. The regional disparity. The regional disparity have increased due to the globalization, as the developed country are benefited more as compared to the developing countries by globalization. Similarly, within the country, developed region have benefited more than the backward region. Thus, all people have not been benefited by globalization. अब जिस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है कि जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो रही थी लोगों के बीच में ग्लोबलाइजेशन को लेके, तो ये बेनिफिट्स जो है ये पूरी कंट्री में प्रॉपरली क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। लोग उसका सभी लोग जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। टू द बैकवर्ड रीजन अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी ग्लोबलाइजेशन से। दस इट इज़ क्लियर दैट द ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन बोथ द वेज, एडवर्सली एंड पॉजिटिवली। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसलिए इंडियन इकोनॉमी में क्या कर रहा था, ये दोनों तरह से बेसिकली अफेक्ट कर रहा था, एडवर्सली भी और पॉजिटिवली भी। द रियलिटी इज़ दैट द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड वी हैव अप्रोच्ड इन द वर्ल्ड मार्केट। सेवरल इंडियन प्रोड्यूसर्स हैव गॉट द status of multinational company. The development rate of Indian economy has also become more than 9%. Consumers are now getting a world class standardization goods. अब देखिए ये जिस तरह से अगर हम बात करें जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो बेनिफिट भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को मिली, हमारा वर्ल्ड मार्केट जो है कहीं ना कहीं बढ़ते गया, हमारे पैर दूसरी कंट्रीज़ में भी बढ़ते चले गए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ के मोर देन 9% अपना वर्ल्ड ट्रेड में ले पाई, तो इससे जो है कंज्यूमर्स जो है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को समझ पाए, अपनी लिविंग स्टाइल्स को चेंज कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहा। बट इन रियलिटी द पीपल ऑफ ऑल क्लासेस हैव नॉट गॉट द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इक्वली। अब हाँ ये बात तो सही है कि ये जो बेनिफिट एक क्लास को मिला ये सभी क्लास के लोगों को नहीं मिल पाया, सभी लोगों ने इस सारे बेनिफिट को इक्वली गेन नहीं कर पाए। सेवरल स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। और कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे लेवल पे शुरू हुई थी वो सारी क्या हुई, बंद हो गई क्योंकि कंपटीशन की वजह से। द प्रॉब्लम लाइक अ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए जो कंट्री ये जिस तरह से ये सारी चीज़ें कर रही थी, ये पॉवर्टी के लेके अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा और बढ़ता चला गया और ये कॉम्प्लिकेट होता चला गया। Along with this, due to the influence of a developed country upon the World Trade Organization, developing and backward country are not getting the due to benefits of the globalization. The new labor laws are not affecting the labor class favorably. Therefore, the special efforts are needed. अब इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हो रही थी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं मिल पा रही थी, सारा बेनिफिट जो नहीं मिल पा रहा था, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था दूसरे क्लास को यानी लेबर क्लास को। इसीलिए इसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट की नीड थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।